بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے رائٹنگ کو لے کر ہمارے اسٹوڈنٹس خاص طور پہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کچھ کنفیوژنس کا شکار رہتے ہیں۔ وہ بار بار یہ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں کہ سر یہ جو ایسے ہم نے لکھنا ہے پیپر میں، اس ایسے کے اندر ہم ہیڈنگس لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے، اور اگر لکھیں گے تو ان کے کتنے مارکس ہوتے ہیں، اور یہ جو کوٹیشنز ہوتی ہیں ان کو ایسیز کے اندر شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو ایک ایسے کے اندر کتنی کوٹیشنز ہونی چاہیے، ان کے کتنے مارکس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ کچھ سوال ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر اسی کنفیوژن کو دور کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ ہیڈنگس ہم کہتے ہیں ایک ایسے کے اندر جو ڈیفرنٹ پیراگرافس بنائے جاتے ہیں، جو انفارمیشن کے ڈیفرنٹ بلاکس ہم بناتے ہیں، ان کے جو ہم ٹائٹلز رکھتے ہیں ان کو ہیڈنگس کہا جاتا ہے۔ اور کوٹیشنز ہم کہتے ہیں بعض اوقات ایک ایسے کے اندر ہم اپنے آرگومنٹ کی سپورٹ میں کسی بڑے آدمی کا کوئی کال، کوئی اس کی بات وہ نقل کر دیتے ہیں، یا کسی پوئم میں سے کچھ لائنز لکھ دیتے ہیں، یا کسی اہم بک میں سے کوئی ریفرنس دیتے ہیں اور اس بک کی کچھ لائنز وہ ہم اپنے ایسے کے اندر کوٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو عام طور پہ کوٹیشنز کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک تیسری اور بڑی اہم چیز اور بھی ہوتی ہے جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اسٹیٹسٹکس، جنہیں آپ اعداد و شمار کہتے ہیں۔ یعنی بعض ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جب تک آپ کچھ اسٹیٹسٹکس نہیں دیں گے وہ ایک اچھا ایسے نہیں سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ ایسے لکھ رہے ہیں اوور پاپولیشن کے اوپر، آبادی میں اضافہ اور اس کے نقصانات وغیرہ، تو اب صاف ظاہر ہے اس ایسے کے اندر ہم بتائیں گے کہ پہلے ہماری آبادی اتنی ہوتی تھی، ہمارے وسائل اتنے ہوتے تھے، اب ان میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے، آبادی میں اتنا اضافہ ہوا ہے، پہلے جو کرائمز تھے ان کی یہ پرسنٹیج تھی، اب جو فلاں فلاں کرائمز ہیں ان کی شرح میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کچھ فگرز ہم اپنے اس ایسے کے اندر شامل کریں گے تب یہ ایک اچھا ایسے سمجھا جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ہیڈنگز، کوٹیشنز اور اسٹیٹسٹکس، جن کو ہم نے ایسیز کے اندر شامل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ تینوں چیزیں ہر ایسے میں شامل کریں گے، یا ان تینوں چیزوں کو کسی بھی ایسے میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ہمارا آج کا سوال ہے۔ تو اب بات کو سمجھیں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایسیز کے ٹاپکس کے اوپر، یعنی ان چیزوں کے بارے میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں رولز نہیں ہے کہ ان کو آپ نے ہر ایسے کے اندر شامل کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹاپک کے اوپر۔ بعض ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اگر آپ ہیڈنگز نہیں لکھیں گے پھر بھی وہ ایک اچھا ایسے سمجھا جائے گا، لیکن کچھ ٹاپکس ایسے ہیں کہ ان کے اندر ہیڈنگز کو اگر آپ شامل کریں، اپنی بات کو جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس کے ڈیفرنٹ بلاکس بنا کے لکھیں، اور ہر جو بلاک جس کے اندر بڑی اہم کوئی معلومات ہے اس کا ایک ٹائٹل بھی دے دیں، اس کی ایک ہیڈنگ دے دیں، تو اس کو پھر اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی بعض ٹاپکس ایسے ہیں کہ ان میں ہیڈنگز کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے تاکہ اس ایسے کے اندر جو بھی آپ انفارمیشن کنوے کر رہے ہیں اس کے اندر ایک کلیئرٹی آئے، اور آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس ٹاپک کے بارے میں وہ زیادہ واضح ہو، تو آپ کا جو پیپر چیک کرنے والا ہے وہ یقیناً آپ سے متاثر ہوگا اور آپ کو اچھے مارکس ایوارڈ کرے گا۔ لیکن کچھ ٹاپکس ایسے ہیں ان میں ہیڈنگز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے کوٹیشنز اور اسٹیٹسٹکس کا معاملہ ہے کہ ان کو ہم نے کچھ ایسیز میں یوز کرنا ہوتا ہے، لیکن کچھ میں ان کے بغیر بھی ہم بہترین ایسے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے کلیئر ہوگا کہ ان کو کس کس ایسے میں ہم نے شامل کرنا ہے، کس کس میں نہیں کرنا؟ تو آپ کی سہولت کے لیے میں نے آپ کے جو کورس میں 20 ایسیز شامل ہیں سیکنڈ ایئر کے کورس میں نے ان کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ یعنی جو ایسیز ہوتے ہیں ان کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں، لیکن آپ کے کورس میں جو ایسیز شامل ہیں وہ 4 قسموں کے ہیں۔ پہلے آپ ان چاروں اقسام کے بارے میں تھوڑا سمجھیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں سے کس قسم کے ایسے کے اندر ہیڈنگز، کوٹیشنز اور اسٹیٹسٹکس میں سے کون کون سی چیزیں لازمی یوز کرنی چاہیے، اور کون سے ٹاپکس ایسے ہیں جن کے اندر ہم ان میں سے کچھ بھی استعمال نہ کریں پھر بھی ایک اچھا ایسے لکھا جا سکتا ہے۔ تو پہلے تو آپ ایسیز کی ٹائپس کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے کورس میں جو ایسیز ہیں ان میں سے کون سا ایسے کس ٹائپ میں آتا ہے۔ تو ایسیز کی سب سے پہلی جو ٹائپ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیریٹو ایسیز،
यानी ये वो एसेज होते हैं जिनमें एक कहानी सुनाई जाती है, स्टोरी फ्रॉम अ सर्टन व्यू पॉइंट, यानी जो राइटर होता है इन एसेज को लिखने वाला वो अपने नुक्ता नज़र से उस कहानी को बयान करता है। और इन एसेज के अंदर कैरेक्टर्स भी होते हैं, सेटिंग होती है, एक बैकग्राउंड होता है, क्लाइमेक्स होता है, यानी वो कहानी चलती है तो उसमें एक क्लाइमेक्स भी आता है। बाज़ इन एसेज का एक पूरा प्रॉपर प्लॉट होता है और इनके अंदर डिफरेंट इंसिडेंट्स जो होते हैं राइटर उनको नैरेट करता है, वो आपको सुनाता है। तो ये एक तरह के स्टोरी टाइप एसेज होते हैं, इनको हम नैरेटिव एसेज कहते हैं। आपके पेपर में 2 एसेज नैरेटिव हैं, उनमें से एक अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस और दूसरा है अ क्रिकेट मैच, यानी ये 2 एसेज सिर्फ आपके कोर्स में नैरेटिव एसेज हैं। और एसेज की दूसरी किस्म होती है डिस्क्रिप्टिव एसेज। ये वो एसेज होते हैं जिनमें राइटर ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, यानी वो क्या करता है किसी शख्स के बारे में या कुछ लोगों के बारे में या कुछ चीज़ों के बारे में, किसी अहम वाक़े के बारे में उसकी डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके डिफरेंट जो पहलू होते हैं उनका जायज़ा लेता है, उनके ऊपर बात करता है, तो उनको डिस्क्राइब करता है। ये डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन से ही है ये लफ्ज़। तो ऐसे जो एसेज होती हैं, बयानिया एसेज आप इनको कह सकती हैं, इनके अंदर कुछ फैक्ट्स भी बाज़ को मेंशन करता है, वो अपनी ओपिनियन भी शामिल करता है, बाज़ कुछ एसेज में वो अपनी फीलिंग्स भी बयान करता है। तो इस तरह की चीज़ें जिन एसेज में होती हैं उनको हम डिस्क्रिप्टिव एसेज कहते हैं। आपके कोर्स में ये 6 एसेज, लाइफ इन अ बिग सिटी, माई हॉबी, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, टेक्निकल एजुकेशन, माई एम इन लाइफ और साइंस एंड सोसाइटी, ये 6 एसेज जो हैं ये डिस्क्रिप्टिव एसेज हैं। इसी तरह से एसेज की तीसरी किस्म होती है, उन्हें हम कहते हैं एक्सपोजिटरी एसेज, यानी वो एसेज होते हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है, यानी कंपेयर, एक्सप्लोर एंड डिस्कस प्रॉब्लम्स, यानी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का आपस में मवाजना भी किया जाता है और उस प्रॉब्लम के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जाता है। न्यूट्रल एक एनालिसिस किया जाता है, बिल्कुल गैर जानिबदार रह के बताया जाता है कि ये मसला क्यों पैदा हुआ है। और क्लियर फोकस्ड एक्सप्लेनेशन होती है ऑफ द टॉपिक और ऑफर सोल्यूशन। इन एसेज के अंदर राइटर आखिर में कोई ना कोई सोल्यूशन भी बताता है, उस मसले का कोई ना कोई हल भी बताता है, कुछ तजावीज़, कुछ रिकमेंडेशंस पेश करता है। तो इस तरह के जो एसेज होते हैं इन्हें एक्सपोजिटरी एसेज कहा जाता है। आपके पेपर में पोल्यूशन, कोरोना पेंडेमिक इन पाकिस्तान, करप्शन, कर्बिंग चाइल्ड अब्यूज़, राइजिंग प्राइसेस और ड्रग एडिक्शन, ये 6 एसेज जो हैं ये आपके पेपर में एक्सपोजिटरी एसेज हैं, यानी ये 6 प्रॉब्लम्स के ऊपर लिखे हुए एसेज हैं। और एसेज की चौथी किस्म होती है जिन्हें आर्गुमेंटेटिव एसेज कहा जाता है। ये वो एसेज होते हैं जिनके अंदर एक आर्गूमेंट होता है, एक बहस होती है। द राइटर ट्राइज टू कन्विंस द रीडर ऑफ समथिंग, राइटर की कोशिश होती है कि वो अपने पढ़ने वाले को एक ख़ास बात पर, एक ख़ास मौक़िफ़ पर कायल करे। यानी बाज़ औक़ात ये टॉपिक्स बड़े मुतनाज़िया होते हैं, इनमें 2-2 राय होती है, कुछ लोग उस टॉपिक की फेवर में होते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट भी होते हैं। तो फिर राइटर क्या करता है, कुछ फैक्ट्स, उसका भी अपना एक मौक़िफ़ होता है, वो कुछ फैक्ट्स बयान करता है, कुछ एविडेंसेस पेश करता है, कुछ प्रूफ पेश करता है अपने आर्गूमेंट की सपोर्ट में, और रिमूव मिसकंसेप्शन। ये वो एसेज होती हैं जो पढ़ने वालों के जहन में जो गलत फहमियाँ होती हैं किसी भी मौजू के बारे में उनको दूर करते हैं। यानी ये हमारे पेपर में 6 एसेज आर्गूमेंटेटिव भी हैं। उनमें वाई आई लव पाकिस्तान, कंप्यूटर अ ब्लेसिंग और अ कर्स, सेल फोन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और वुमेन्स प्लेस इन आवर सोसाइटी, एजुकेशन फॉर वुमेन और इम्पोर्टेंस ऑफ मुस्लिम यूनिटी। यानी ये 6 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर एक आर्गूमेंट है, इनके अंदर बहस होगी और उस बहस की सपोर्ट में मुख्तलिफ दलाइल दिए जाएंगे। तो इस तरह के जो एसेज होते हैं इन्हें आर्गूमेंटेटिव एसेज कहा जाता है। तो ये जो एसेज की 4 टाइप्स होती हैं, अगर आपको इनकी समझ आ गई है तो अब आप ये भी समझें कि इनमें जो नैरेटिव एसेज होते हैं जिनके अंदर हमने कोई कहानी सुनानी होती है, इन एसेज के अंदर आपको ना तो हेडिंग्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ना आप उसमें कोटेशंस लिखें और ना ही स्टैटिस्टिक्स लिखें। इन तीनों चीज़ों के बगैर भी आप एक अच्छा नैरेटिव एसे लिख सकते हैं। यानी अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस और अ क्रिकेट मैच, ये 2 एसेज आपके नैरेटिव हैं। इनके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि आपको इन तीनों में से किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसी तरह जो आर्गूमेंटेटिव एसेज होते हैं,
आर्गुमेंटेटिव, जो एसेस की चौथी टाइप आपने समझी, जिसके अंदर एक बहस करनी है, कन्विंस करना है अपने रीडर्स को, अपने दलाइल के साथ किसी ख़ास मौक़िफ़ पे लेके आना है। तो ये जो एसेस होते हैं, इन एसेस के अंदर हेडिंग्स भी यूज़ करनी है, कोटेशंस भी यूज़ करनी है और स्टैटिस्टिक्स भी देनी है। यानी ये टॉपिक ही कुछ इस तरह के होते हैं आर्गुमेंटेटिव। इनके अंदर आपको इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर जाके वो एक अच्छा एसे बनता है। यानी नैरेटिव एसेस में आप ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल ना करें, लेकिन आर्गुमेंटेटिव एसेस में आपने इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करना है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है डेस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी एसेस का, इनमें ये होता है कि बाज़ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि उनमें हेडिंग्स और कोटेशंस की ज़रूरत होती है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं उनमें कोटेशंस और स्टैटिस्टिक्स की ज़्यादा अहमियत होती है। कुछ तो ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिनमें स्टैटिस्टिक्स को अगर आप शामिल नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल भी एक अच्छा ऐसे नहीं होगा। ये जो डेस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी एसेस होती हैं, इनमें आपके पास चॉइस है, आप इनमें हेडिंग्स यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कोटेशंस अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर इनमें शामिल करें, अगर नहीं है तो कोटेशंस के बगैर भी एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी ऐसे लिखा जा सकता है। और स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो कुछ एसेस में तो बहुत अहम होती हैं, वहाँ पे तो उनको ज़रूर शामिल करना चाहिए। लेकिन कुछ टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं कि उनके अंदर स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत नहीं होती। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। इस चार्ट के अंदर ये जो आपके कोर्स में 20 एसेस शामिल हैं सेकंड ईयर के कोर्स में, इन एसेस को एक एक करके मैंने बता दिया है कि इनके अंदर आपने इनमें से किस एसे के अंदर हेडिंग्स को यूज़ करना है, कोटेशंस को यूज़ नहीं करना, स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करना है, किन एसेस के अंदर आपने इन तीनों चीज़ों को यूज़ नहीं करना और किन एसेस के अंदर इन तीनों को यूज़ करना है। ये एक एक करके मैंने तमाम एसेस का एक चार्ट बना दिया है, तो वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। इस चार्ट में आप देखें, सबसे पहला जो ऐसे है वो है लाइफ इन अ बिग सिटी। ये टाइटल ऑफ द ऐसे है और उसके बाद टाइप ऑफ ऐसे आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव है ये। और इसमें मेरा ख्याल है कि आपको हेडिंग्स ज़रूर लिखनी चाहिए, कोटेशंस की ज़रूरत नहीं है, और स्टैटिस्टिक्स बड़े शहरों में ज़िंदगी किस तरह की है उसके बारे में कुछ एदाद व शुमार, कुछ फिगर्स अगर आप इसके अंदर ऐड करती हैं तो यकीनन वो एक अच्छा ऐसे होगा। इसी तरह से अ विज़िट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, ये एक नैरेटिव ऐसे है, लेकिन इस ऐसे के अंदर आपको हेडिंग्स की भी ज़रूरत नहीं है, कोटेशंस की भी ज़रूरत नहीं है और स्टैटिस्टिक्स की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक कहानी आपने सुनानी है, नरेट करनी है। कहानी के अंदर कोई ब्लॉक्स तो होते नहीं हैं, आप पैराग्राफ बना लें बेशक, लेकिन उन पैराग्राफ्स की हेडिंग्स देने की ज़रूरत नहीं होती। और माई हॉबी, ये देखें डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, इसके अंदर आप हेडिंग्स ना दें, लेकिन कोटेशंस को अगर आपके पास हॉबीज़ के बारे में कुछ हैं तो इसके अंदर ज़रूर ऐड करें। और स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। पोल्यूशन देख लें, ये एक एक्सपोजिटरी ऐसे है, ये एक प्रॉब्लम के ऊपर लिखा गया ऐसे है, तो इसके अंदर हेडिंग्स ज़रूर दें। ये आम तौर पे जो एक्सपोजिटरी ऐसेज होती हैं इनके अंदर हेडिंग्स लाजमी होती हैं, लेकिन इनके अंदर जो कोटेशंस होती हैं वो ऑप्शनल हैं, वो आप कोटेशंस दे भी सकते हैं। आपके पास कोटेशंस हैं तो आप ज़रूर लिखें, अगर नहीं है तो फिर भी आप इनके बगैर भी एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। और ये पोल्यूशन ऐसा टॉपिक है कि इसके अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स ज़रूर शामिल करने चाहिए, उनके बगैर ये एक अच्छा ऐसे बिल्कुल नहीं बन सकेगा। इसी तरह से माई फेवरेट पर्सनैलिटी, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, इसके अंदर आप हेडिंग्स दें, लेकिन इसके अंदर कोटेशंस और स्टैटिस्टिक्स की मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है। और इसी तरह से वाई आई लव पाकिस्तान, अब ये एक आर्गूमेंटेटिव है, आप पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों करते हैं, आपने कन्विंस करना है पढ़ने वाले को, दलाइल देनी है। तो जो आर्गुमेंटेटिव एसेस होते हैं, मैंने आपको बताया कि इनके अंदर आपने तीनों चीज़ें यूज़ करना होती हैं, हेडिंग्स भी, कोटेशंस भी और स्टैटिस्टिक्स भी। इसी तरह से कोरोना पेंडेमिक इन पाकिस्तान, ये एक एक्सपोजिटरी ऐसे है, तो इसके अंदर आप हेडिंग्स तो ज़रूर दें, स्टैटिस्टिक्स भी ज़रूर दें, लेकिन कोटेशंस अगर आपके पास कोई अवेलेबल हैं तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर कोटेशंस नहीं भी हैं तो उनके बगैर भी एक अच्छा ऐसे बनाया जा सकता है। इसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन देख लें, ये डिस्क्रिप्टिव है, इसमें आप हेडिंग्स दें, स्टैटिस्टिक्स भी दें, लेकिन कोटेशंस की इनके अंदर ज़रूरत नहीं है। और माई एम इन लाइफ, ये डिस्क्रिप्टिव है, क्या आपकी ज़िंदगी का मकसद है, तो उस मकसद को साफ साफ वो एक ही मकसद होगा, उसको डिफरेंट हेडिंग्स में तो मेरा नहीं ख्याल हम उसको तकसीम कर सकते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है गो के डिस्क्रिप्टिव है, इसके अंदर हेडिंग्स की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप कोटेशन ज़रूर दें। इसके अंदर कोटेशंस की बड़ी अहमियत होगी कि जो मकासिद होते हैं
हैं ज़िंदगी में, ये कितना अहम किरदार अदा करते हैं। तो उसके बारे में आप बड़े लोगों की कुछ बातें इसमें ऐड करें, कुछ स्टैटिस्टिक्स बता दें, जो एम आपने चूज़ किया है, जो आपका मकसद है, उसके बारे में कुछ फिगर्स अगर आपके पास हैं तो वो आप इसके अंदर ज़रूर ऐड करें। और कंप्यूटर अ ब्लेसिंग और अ कर्स, ये एक आर्गूमेंटेटिव है। अब इसमें बहस होगी, कुछ लोग कंप्यूटर को एक लानत करार देते हैं, कुछ लोग इसको एक नेमत करार देते हैं। तो वो आर्गूमेंट आपने करना है, उस आर्गूमेंट की सपोर्ट में आपको कोटेशंस भी चाहिए और आपको स्टैटिस्टिक्स भी चाहिए, और हेडिंग्स भी इस ऐसे के अंदर आप लाजमी शामिल करेंगे, फिर जाके ये एक अच्छा ऐसे बनेगा। और इसके बाद 11 नंबर पे है सेल फोन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब ये भी एक आर्गूमेंटेटिव है, कुछ लोग इसकी मुखालफत करते हैं, कुछ इसके हमायती हैं। तो इसमें भी आपको जो आपका आर्गूमेंट है उसकी सपोर्ट के लिए आपको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी, हेडिंग्स भी दें, कोटेशंस भी दें और स्टैटिस्टिक्स भी दें। और क्रिकेट मैच, अब ये एक स्टोरी टाइप होगा, एक नैरेटिव ऐसे है, इसमें आपने एक कहानी सुनानी है। मैच शुरू हुआ ऐसे ऐसे जी, पहली टीम ने बैटिंग की, इतने स्कोर बनाए, फिर दूसरी टीम ने बैटिंग की, ऐसे करके उस मैच का जो सारा एनवायरनमेंट था, जो माहौल था, वो इसमें आप बयान करेंगे। तो ये एक नैरेटिव ऐसे ही होगा। बहरहाल इसके अंदर भी हेडिंग्स की, कोटेशन, स्टैटिस्टिक्स की, इन तीनों चीज़ों की मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है। और साइंस एंड सोसाइटी, साइंस और सोसाइटी का आपस में क्या कनेक्शन होता है, ये डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब करेंगे, अपना व्यू पॉइंट देंगे कि मुआशरे का और साइंस का आपस में क्या ताल्लुक होता है। तो इसके अंदर आप हेडिंग्स भी दें, कोटेशंस भी दें, लेकिन इसके लिए स्टैटिस्टिक्स वगैरह की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वुमेन्स प्लेस इन आवर सोसाइटी और एजुकेशन फॉर वुमेन, ये दोनों आर्गूमेंटेटिव एसेज हैं। तो इनके अंदर आपको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी। आप हेडिंग्स भी देंगे, औरतें कहाँ कहाँ पे काम कर रही हैं, किन किन शोबों में काम कर रही हैं, और उनकी एजुकेशन के, उनका जो मकाम और मर्तबा है मुआशरे के अंदर, उसको आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स बना के अगर आप बयान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और कोटेशंस ऐड करें औरतों के बारे में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान हैं वो इसके अंदर ऐड करें। मुख्तलिफ बड़े जो लोग गुजरे हैं जिन्होंने मुआशरों के ऊपर रिसर्च की, समाजियात के जो माहिरीन गुजरे हैं, उनके कुछ अकवाल आप यहाँ पे कोट करें। और स्टैटिस्टिक्स भी दें औरतों के बारे में कि इनकी दुनिया के अंदर क्या परसेंटेज है, किस किस शोबे में औरतें कितना अपना कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, वगैरह वगैरह। और इसके बाद करप्शन, ये एक एक्सपोजिटरी है, इसके अंदर आप हेडिंग ज़रूर दें, लेकिन कोटेशंस ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। और स्टैटिस्टिक्स ज़रूर, ये भी ओवर पॉपुलेशन की तरह एक अहम टॉपिक है, और इसके अंदर भी स्टैटिस्टिक्स जब तक आप ऐड नहीं करेंगे तो ये कभी भी एक अच्छा ऐसे नहीं समझा जाएगा। और कर्बिंग चाइल्ड अब्यूज़, ये भी एक एक्सपोजिटरी है, एक प्रॉब्लम के ऊपर लिखा गया ऐसे है। तो इसमें भी आप हेडिंग्स दें, कोटेशंस ऑप्शनल हैं, और स्टैटिस्टिक्स ज़रूर दें। और इम्पोर्टेंस ऑफ मुस्लिम यूनिटी, ये आर्गूमेंटेटिव है, इसके अंदर आप तीनों चीज़ें शामिल करेंगे। और राइजिंग प्राइसेस और ड्रग एडिक्शन, ये दोनों एक्सपोजिटरी एसेज हैं। तो इनके अंदर आप हेडिंग्स और स्टैटिस्टिक्स तो ज़रूर दें, लेकिन कोटेशंस ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप ज़रूर इसमें शामिल करें, अगर नहीं है तो उनके बगैर भी आप एक अच्छा ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपकी ये कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। बाकी मैं आखिर में फिर बताता चलूँ कि इन चीज़ों के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, कोई ब्लैक एंड वाइट रूल्स नहीं होते। अगर आपको कोई कहे कि हेडिंग्स लाजमी होनी चाहिए एसेस के अंदर, वो भी गलत कह रहा है। और अगर आपको कोई कहे कि एसेस के अंदर हेडिंग्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो भी गलत कह रहा है। यानी इन चीज़ों का ताल्लुक एसेस के साथ नहीं होता, एसेस के टॉपिक्स के साथ होता है। तो मैंने आपको अपनी समझ के मुताबिक कुछ गाइड कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम इन 20 एसेस के बारे में जो आपके कोर्स में शामिल हैं, आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आ चुकी है। तो अब आपके लिए इन चीज़ों के बारे में फैसला करना, किस एसे के अंदर हमने क्या चीज़ें शामिल करनी है, क्या नहीं करनी, ये काफ़ी आसान हो चुका होगा। तो आज की वीडियो में बस ये काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।